ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام خرم ہے اور میں کوئی بہت دولت مند نہیں ہوں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اچھا کما لیتا ہوں، اور اس بات کا بھی بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے ایک درد مندانہ دل دیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، مجھے جاننے والے کہتے ہیں۔ جب میں 10ویں میں تھا تو میرے پیارے ابو شدید بیمار رہنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت ہمارے حالات بہت اچھے نہیں تھے۔ ابو کی ایک کریانے کی چھوٹی سی دکان تھی اور وہ اپنا سارا وقت سامان لانے، لے جانے، سودا سلف لانے اور میری ضروریات کو پورا کرنے میں گزار دیتے۔ رات کو مٹی کے برتن بناتے۔ یہ ہنر ان کے ہاتھ میں ایسا تھا کہ ان کے بنائے ہوئے برتن لوگ بہت پسند کرتے۔ ابو نے دکان پر بھی رکھے ہوئے تھے اور ایک آدمی رکھا ہوا تھا جو ریڑھی پر مٹی کے برتن بیچنے سارے محلے کا چکر لگاتا تھا اور رات کو ابو کو پیسے دے جاتا تھا۔ ابو اس کو اس کی کمائی کا حصہ دے دیتے تھے۔ بہن کی اور میری پڑھائی کی فکر مندی نے ابو کو کمزور کر دیا تھا۔ امی کو ان کی صحت کی بڑی فکر رہتی تھی۔ انہی دنوں ایک اچھا لڑکا دیکھ کر بہن کی شادی کر دی گئی۔ اس کے جہیز کی تیاریوں اور شادی کے اخراجات کی فکر نے ابو کو پریشان کر دیا تھا۔ دن رات پیسے جوڑنے کی کوشش میں رہتے۔ اللہ کا شکر انہوں نے بہن کی شادی بڑے اچھے طریقے سے کی۔ سب نے بھرپور حصہ لیا اور سب کام بخوبی سر انجام پائے۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ ایک طرف سے تو امی ابو کی فکر کم ہوئی، اب مجھے بھی احساس ہونے لگا تھا کہ مجھے ابو کا ہاتھ بٹانا ہے۔ شام کو کبھی کبھی ابو کے ساتھ دکان پر بیٹھ جاتا تھا۔ کالج کا کام بھی وہیں کرنے کی کوشش کرتا۔ ابو کو کچھ دیر آرام کے لیے گھر بھیج دیتا تھا کیونکہ ان کی صحت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ ابھی میں کالج میں تھا کہ ابو بیمار رہنے کے بعد ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ امی غم سے نڈھال تھیں، مگر ہمیں حوصلہ دینے کے لیے خود کو مضبوط دکھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ وہ دن بہت کٹھن تھے، مگر سب جانتے ہیں کہ جانے والے کے ساتھ جایا نہیں جاتا۔ جب تک سانسیں چلنے کا وقت لکھا گیا ہے، ہمیں زندہ رہنا ہے۔ ہم بھی آنسو بہا کر اور ٹوٹے دل کے ساتھ زندگی کے سفر پر رواں دواں ہو گئے۔ امی اندر ہی اندر روتی تھیں۔ ابو کی کمی سب کو بہت محسوس ہوتی، مگر امی کا تو جیون ساتھی چلا گیا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر روتی تو ان کی آنکھیں سوجی ہوتی۔ میں سب دیکھ رہا تھا، پر میرے پاس ماں کو حوصلہ دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ انہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا، ایسی کوئی بات نہ کرتا جو امی کو بری لگے، مگر ابو کے جانے سے جو خلا پیدا ہو چکا تھا اسے پر نہیں کر سکتا تھا۔ میری ہمت بھی کبھی کبھی ٹوٹ جاتی تھی، لیکن میں مرد تھا اور مرد روتا اچھا نہیں لگتا۔ میں اپنے آنسو اپنے اندر ہی گرنے دیتا۔ ابو میرا ایسا سہارا تھے جن کے ہوتے مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے ابو کے پاس کوئی الادین کا چراغ ہے، جو مانگو جب مانگو وہ چراغ رگڑتے اور چیز حاضر ہو جاتی۔ ابو کے ہوتے بہت بے فکری کی زندگی تھی۔ ان کے بعد جیسے سر سے چھت ہی چلی گئی ہو، مگر میں امی کے لیے خود کو بہت مضبوط ظاہر کرتا تھا۔ میرا سب کچھ اب امی ہی تھی۔ بہت خیال رکھتا تھا۔ ابو کی دکان اب میں نے سنبھال لی تھی، پیسے سے پیسہ بنا رہا تھا۔ خدا نے مزید نوازا تو دکان بڑی کر لی۔ میں دکان کی آمدنی میں سے کچھ حصہ غریبوں یتیموں کو ضرور دیتا تھا۔ کوشش ہوتی تھی کسی کو ضرورت ہو اور وہ مجھ سے مانگے تو اسے خالی ہاتھ نہ واپس بھیجوں۔ اس طرح ابو کی روح کو بھی سکون ملتا ہوگا اور امی بھی خوش ہوتی تھیں۔ مجھے بھی اطمینان رہتا تھا۔ ویسے تو ہمارے محلے میں بھی کافی ضرورت مند تھے جن کی مدد کی توفیق خدا نے مجھے عطا کی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے کاروبار میں برکت پڑ رہی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی۔ رات کا کچھ حصہ پڑھائی کو دیتا تھا۔ امی کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ میں امی کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا اور دعائیں لیتا تھا، مگر شوگر نے انہیں اندر سے بہت کمزور کر دیا تھا۔ میں دن میں 2-4 بار گھر چکر لگا کر امی کو دیکھ جاتا تھا۔ اب امی میری شادی کی فکر کرنے لگی تھیں، مگر مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تھی۔ میں اپنا گھر بنانا چاہتا تھا۔ شادی کے بعد کی ذمہ داریاں نبھانا ابھی میرے لیے مشکل تھا۔ امی اس بات کو سمجھنے کی بجائے کہتی کہ تم میری زندگی میں شادی کر لو، میں بھی تمہاری خوشیاں دیکھ لوں، اور میں ہنس کر کہتا، امی جان آپ کو میری بھی عمر لگ جائے، آپ نے تو میرے بچوں سے بھی دل بہلانا ہے، انہوں نے بھی آپ کو تنگ کرنا ہے۔ امی مسکرا کر کہتی، بس خواب دکھا دیا کرو، عمل نہ کرنا۔ کرنا ہے کیوں نہیں کرنا، بس تھوڑا سا وقت دے دیں، پھر جو آپ کہیں گی وہی کروں گا۔ میں ہاتھ چوم کر کہتا اور یہ بات یہیں ختم ہو جاتی۔ میں بھی امی کا یہ خواب پورا کرنا چاہتا تھا، مگر ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں کیسی ہو آنے والی، امی کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ میں نے اپنے دوستوں کی کئی کہانیاں سن رکھی تھیں، اس لیے بھی ڈرتا تھا۔ بہرحال امی کو راضی کر لیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، امی کی شوگر ہائی رہنے لگی اور اس سے کئی اور مسائل نے جنم لے لیا۔
मैं सख्त फिक्रमंद था। एक दिन इतनी तबीयत खराब हुई कि हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह किया और उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया। कहने लगा शुगर बहुत ज्यादा है और कुछ मसला दिल का भी लग रहा है। मैं दिन रात दुआएं करता था। दुकान पर भी तवज्जो कम हो गई। हर वक्त अम्मी की तरफ ध्यान रहता था। दिन रात मेरे मसरूफ हो गए। हॉस्पिटल से आकर खुद ही अम्मी के खाने के लिए कुछ बनाता, खुद को जो मिलता खा लेता, अक्सर भूखा रहता। अम्मी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। जब उनके पास जाता तो सबसे पहले यही सवाल करती कि तुमने कुछ खाया है, भूखे ना रहना, तबीयत खराब हो जाएगी। उन्हें हॉस्पिटल में भी अपनी नहीं मेरी फिक्र थी। माएँ भी कितनी अजीब होती हैं, अपना दर्द भुलाकर औलाद की फिक्र में परेशान रहती हैं। मैं अपनी अम्मी के लिए दुआ करता था तो ये भी दुआ करता कि या अल्लाह सबकी माँओं को सलामत रखना। मगर यह हकीकत है कि सबने एक ना एक दिन अपने खालिक़े हकीकी से जाकर मिलना है, कोई जल्द कोई देर से। और फिर आखिरकार मेरी अम्मी भी मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर चली गईं। वो दिन मेरे लिए जिंदगी का बहुत मुश्किल, लंबा और तकलीफ दह दिन था। यूं लगता था जैसे मैं सहरा में तन्हा प्यासा खड़ा हूँ। दूर दूर तक सिर्फ रेत के अलावा कुछ नजर नहीं आता। लगता था कोई आंधी आएगी और मुझे उड़ा कर ले जाएगी। मुझे दुनिया की सर्द गर्म हवा से बचाने वाला कोई नहीं था। हर तरफ अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। बहुत लोग आए ताज़ियत के लिए। सबने मेरी बड़ी दिलजोई की, हौसला दिया, गले से लगाया, हिम्मत बढ़ाई। मगर जैसे मेरा जिस्म दिमाग सब सुन हो चुका था। मैं एक चुप सादे बैठा था। चंद दिन सब आते रहे, मेरे गम को कम करने की कोशिश करते रहे। फिर वो सब भी अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। यही दुनिया की रीत है। चंद दिन जबरदस्ती दोस्त अहबाब ने खाना खिलाया, भूखी खत्म हो चुकी थी। फिर जब सब जिंदगी के मेले में खो गए, इस वक्त मुझे शिद्दत से एहसास होने लगा कि काश अम्मी की ख्वाहिश पूरी कर देता। वो मेरी खुशी देखना चाहती थी। काश मैं उनकी बात मान लेता। आज इस मकान में मेरे साथ कोई तो होता। तन्हाई का एहसास शिद्दत इख्तियार करने लगा। दुकान के मुलाजिम ने जोर दिया कि आप दुकान पर बैठा करें। दोस्त अहबाब ने भी यही मशवरा दिया कि परेशान होना छोड़ दो, तुम्हारा गम बहुत बड़ा है, मगर जाने वालों के साथ कोई नहीं जाता। आगे बढ़ो और खुद को संभालो। खुद को संभालना कितना मुश्किल होता है ये मैं जान चुका था। खैर, कुछ आंसू बहाकर और कुछ सब्र के घूंट पीकर मैं फिर से काम पर जाना शुरू हो गया। मेरी कोशिश होती ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आऊं, इनकी जरूरियात पूरी करूं, मेरे आसपास कोई भूखा न रहे। मेरा दिल इतना नरम था कि रास्ते में भी रोते बच्चे को देखकर दिल दुखता था। फौरन उससे रोने की वजह पूछने रुक जाता। मैं हमेशा जेब में छोटी चॉकलेट रखता था। एक तो मुझे पसंद थी, दूसरा कभी बच्चों को देनी पड़ जाती थी। वक्त गुजरता गया। मोहल्ले की एक दो खालाएं थीं जो अम्मी के पास आकर गपशप किया करती थीं। वो अक्सर मुझे कहती कि तुम अकेले रहते हो, अब शादी कर लो। मैं पहले ही अम्मी को इनकार करके अब पछता रहा था कि माँ की ख्वाहिश उनकी ज़िंदगी में पूरा कर देता तो क्या था। मैंने उनको कह दिया कि ठीक है खाला, आप कोई सुलझी हुई लड़की देख लें, भले ज़रूरतमंद हो। उन्होंने कहा ठीक है। कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि खाला ने एक लड़की का रिश्ता बताया और कहा लड़की अच्छी है, यतीम है, माँ उसकी सौतेली है, बाप दूसरी शादी करके कुछ ही अरसे बाद फोत हो गया था। 2 ही बहनें हैं। सौतेली माँ कम ही अच्छी होती हैं, तुम्हें तो पता है क्या क्या मसाइल होते हैं। खाला ने सर हिलाते हुए कहा। फिर एक दिन बोली लेकिन लड़कियां अच्छी हैं, माँ अच्छी तरबियत करके गई है, तुम देखना चाहो तो बताओ, मैं आगे बात बढ़ाती हूँ। उन्होंने मेरे करीब होते हुए कहा नहीं खाला, मैंने क्या देखना, बस आप अच्छी तरह देख लें। मैं अकेला होता हूँ, घर संभालने वाली हो और रोज रोज तू मैं ना हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब बात करें जरा देखभाल कर। मैंने खाला को सारी जिम्मेदारी सौंप दी। ठीक है बेटा, मैं बात करती हूँ, तुम भी दुआ करना, अगर अच्छी है इस घर के लिए तो कोई रुकावट ना आए। वो ये कहकर चली गई। मैंने घर की हालत पर एक नज़र दौड़ाई। सोचा उसकी दीवारें काफ़ी पुरानी लगती हैं, चलो अगर बात बन गई तो सबसे पहले वाइट वॉश करवा लूँगा, फिर जो ज़रूरत होगी खाला से ही मिन्नत करूँगा, मेरी मदद कर दें। हाँ, पैसे कुछ हैं, कुछ हिसाब लगाना पड़ेगा। यूँ काफ़ी देर में अपने आप से बातें करता रहा, फिर जाकर सो गया। सुबह काम पर भी जाना था। खाला ने इस लड़की की सौतेली माँ से बातचीत की और मुझसे पूछकर शादी की तारीख रखती। मैंने जहेज लेने से मना कर दिया। यूं लड़की यतीम थी और वैसे भी सौतेली माँ की सताई हुई थी। मैंने घर को वाइट वॉश करवाया, कुछ नया सामान और नई चीज़ें लाया, अपना कमरा सेट किया और बड़ी सादगी से मेरी शादी हो गई। शादी वाले दिन मुझे अम्मी अबू बहुत याद आए। मैं काफ़ी देर अकेला बैठा रोता रहा, फिर खुद को हौसला दिया कि खुशी के इस मौके पर सूजी आंखें देखकर लोग कुछ गलत न समझ लें।
ना ही समझे फिर भी जहन में 1000 सवाल उभरते हैं और मैं किसी सवाल का जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। अल्लाह का शुक्र, शादी के तमाम इंतजामात मेरे दोस्तों की बदौलत बड़े अच्छे तरीके से हो गए और ये फरीज़ा भी बखूबी सरअंजाम पाया। चलो अब घर की देखभाल के लिए कोई तो होगा, कम से कम खाना तो वक्त पर मिलेगा, कोई तो होगा जो घर में मेरा मुंतजिर होगा। मैं तन्हाई में ये सोचकर मुस्कुरा उठा। महल्ले वाली खालाएं मेरे साथ रहीं, भरपूर साथ दिया। शादी हो गई। रात को खाला ने जाते हुए बताया कि दुल्हन की छोटी बहन तुम्हें जहेज में मिली है। क्या मतलब? मैं कुछ ना समझते हुए बोला, भाई दोनों बहनें हमेशा इकट्ठी रही हैं, इसी वजह से तुम्हारी बेगम उसे वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वैसे भी सौतेली माँ के पास छोड़ते हुए डरती थी और सौतेली माँ की भी यही ख्वाहिश थी कि साथ ले जाएं। इसके सर से भी बोझ उतरे। तोबा क्या जमाना आ गया है, बेटियां बोझ लगने लगी हैं। खाला ने दोनों हाथ मलते हुए कहा, भाई सौतेली ही सही बेटी तो है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। मैं तो वैसे भी दिल का नरम था और यतीमों से तो खुदा की खातिर वैसे भी मोहब्बत करता था। मैं भला क्या एतराज कर सकता था? नहीं खाला, अच्छा किया ले आई, अकेली वहां परेशान ही होती। कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैंने मुस्कुरा कर कहा। खाला के जाने के बाद मैंने दूसरे कमरे से खरीदा हुआ तोहफा अलमारी से निकालकर जेब में रखा और अपनी दुल्हन के पास कमरे में चला गया। मैं कमरे में गया तो मेरी दुल्हन, जिसका नाम हुमैरा था, हल्का घूंघट निकाले बैठी थी और उसकी बहन पास ही बैठी उसके जेवरात देख रही थी। मुझे देखते ही दोनों सीधी होकर बैठ गईं। मैंने अपनी साली को मुखातिब किया, हालचाल पूछा, खाने का पूछा, इधर उधर की बातें की। मुझे था कि साली साहिबा समझदार हैं, खुद कमरे से चली जाएंगी, मगर वो तो टस से मस ना हुई। ठहर ठहर कर कोई ना कोई सवाल करती रही। जब काफ़ी देर हो गई तो मैंने साली से कहा, आपका दूसरा कमरा सेट कर दिया है, आप आराम से उधर जाकर सो सकती हैं। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई अनोखी बात कर दी हो। नहीं दुल्हा भाई, मैं तो कभी भी आपी के बगैर नहीं सोई और ना ही आपी को मेरे बगैर सोने की आदत है। हम दोनों कभी अलग नहीं सोए। मेरी साली ने बिस्तर पर बैठे बैठे अपना फैसला सुना दिया। मैं बड़े परेशान हुआ कि कैसे समझाऊं। फिर सोचा आज इसी तरह वक्त गुजार लेता हूँ, कल खाला को कहूँगा बात करें। मैंने कहा, ठीक है, आप इधर सोफे पर सो जाओ, हम दोनों बिस्तर पर सो जाते हैं। पहले तो वो ना मानी, फिर शायद हुमैरा ने उसे कोहनी मारी तो उसने हामी भर ली। सोफा काफी चौड़ा खुला था। वो तकिया लेकर वहां लेट गई। अब इस माहौल में ना तो मैं अपनी बेगम से कुछ कह सकता था, ना ही कोई शिकवा करना मुनासिब था। बस कहा, आप चेंज करके सो जाएं। उसे तो जैसे यही जुमला सुनने की ख्वाहिश थी। जी कह के फौरन उठी और अटैची से कपड़े निकालने लगी। मैं भी कपड़े तब्दील करके लेट गया। सोचते सोचते कब आंख लगी पता ही ना चला। सुबह उठकर चीजें ठीक की, नाश्ते का इंतजाम करने बाजार चला गया। नाश्ता लेकर आया तो वो दोनों बहनें तैयार होकर बातें कर रही थीं। मैंने नाश्ते का सामान किचन में रखा और मेज पर बर्तन लगा दिए। खामोशी से हमने नाश्ता किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करूं। वो मेरी साली हर वक्त साथ साथ रहती थी। चंद दिन इसी तरह गुजर गए। हुमैरा ने तकरीबन घर संभाल लिया था। दुकान से घर जाता तो ताज़ा रोटी मिल जाती थी। कई दिन गुजरने के बाद भी मेरी साली को अक्ल नहीं आई। मैंने 2-3 बार हुमैरा को कहा भी कि बहन को समझाओ। बात अभी हो रही होती तो साली साहिबा आ धमकती। किसी किसी वक्त मुझे बहुत गुस्सा भी आता था। एक रात मैंने फैसला कर लिया कि खुद साली को समझाऊंगा। ये कहाँ की शराफत थी कि रोज रात को हमारे कमरे में सोए। उस रात बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। बादल गरजने की आवाजें आ रही थीं। लगता था बारिश बरसने का इम्कान है। रात खाने के बाद चाय पी। आज चाय का मज़ा भी मुख्तलिफ था, या शायद मेरा थकावट से बुरा हाल था। मैं कमरे में जाकर लेट गया और एक किताब की रूह गर्दानी शुरू कर दी। हस्बे आदत रात सोने के लिए हम लेटे तो मेरी साली कमरे में आ गई। मैं कई दिन से ये सब बर्दाश्त कर रहा था, मगर आज मैंने सोच लिया कि उसे खुद समझाना होगा। छोटी बच्ची तो नहीं है जो डर जाएगी। मैंने शाम को ही उसका कमरा सेट कर दिया था और कुछ चीज़ें जो उसकी पसंद की थीं वो भी वहाँ रख दी। कमरे को मैंने बहुत खूबसूरत बनाया ताकि वो खुशी खुशी रहने पर आमादा हो जाए। मैंने कहा, एक चीज़ दिखाता हूँ, तुम्हारे कमरे में बहुत अच्छी चीज़ रखी है। वो पहले तो नहीं मानी, फिर मेरे इसरार पर चल पड़ी। जब मैंने उसे कमरा दिखाया और उसकी पसंद की चीज़ें दिखाईं तो वो बहुत खुश हो गई। बोली, ये मेरे लिए हैं। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बिल्कुल तुम्हारे लिए हैं। अब आज से तुम इन चीज़ों के साथ यहाँ पर ही सोया करोगी। यही नहीं, मैं तुम्हें और भी अच्छी अच्छी तुम्हारी मनपसंद चीज़ें ला कर दूंगा। आज सबकी लिस्ट बना लो और कल मुझे दे देना। वो बहुत खुश हुई। उसे कमरे में लिटाकर जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो एकदम दंग रह गया। हुमैरा ने 2 पिंक पैंथरे अपने साथ लटा रखे थे और कुछ सहमी सहमी सी लग रही थी। ये क्या है? ये तो बच्चों का शौक होता है।
कहाँ से निकाल लिए? मैंने हैरत से पूछा। वो बंद कर दें। उसने डरते हुए उंगली से खिड़की की तरफ इशारा किया, जहां से किसी वक्त बिजली चमकने और बादल गरजने की आवाज आ रही थी। हाँ करता हूँ, डरो नहीं। मैंने फौरन जाकर खिड़की बंद कर दी और उसके पास बैठ गया। आज दिल था कि रात भर उससे बातें करूं, कुछ उसकी सुनूं, कुछ अपनी कहूं, मगर वो कुछ उलझी उलझी सी लग रही थी। क्या बात है हुमैरा, खुलकर बात कर सकती हो, घबराने की जरूरत नहीं, मैंने बड़े प्यार से कहा। वो सीधी होकर बैठ गई और पिंक पैंथरे को दोनों हाथों से जकड़ा हुआ था। मैं समझा वो शायद मुझसे घबरा रही है। हुमैरा कहो, क्या बात है? मुझे बहन के बगैर सोने की आदत नहीं, मुझे बादलों से डर लगता है। उस रात भी इसी तरह बादल गरज बरस रहे थे। वो घुटनों को अपने सीने से लगाते हुए बोली। बारिश होने वाली थी, बत्ती भी चली गई थी। हुमैरा बोलने लगी थी। वो बिल्कुल एक मासूम सी बच्ची लग रही थी। फिर क्या हुआ बत्ती जाने से? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। उसके माथे पर पसीना आने लग गया। उसने दुपट्टे से अपना पसीना साफ किया। मेरी बहन को बुला लें, वो कहीं डर न रही हो। उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उसकी मनपसंद चीजें रखी हैं और कमरा अच्छा सेट कर दिया है। तुम्हें पता नहीं लगाना, मैंने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। फिक्र न करो, सब ठीक है। अच्छा, तुम इस रात के बारे में बता रही थी। क्या हुआ था जब बादल गरज रहे थे और बारिश होने वाली थी? वो गौर से मेरी तरफ देख रही थी, फिर थूक निकलते हुए बोली। आप हम दोनों बहनों को कभी भी कुछ नहीं कहेंगे ना? मेरे दिए हुए हौसले ने उससे कुछ मुतमईन कर दिया था। हाँ, यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मुझे अपनी कहानी सुना सकती हो, शायद इस तरह तुम्हारा अनजाना खौफ खत्म हो सके। मैंने फिर प्यार से धीमे लहजे में कहा। वो 2 मिनट खामोश रही। मैं भी खामोशी से उसके बोलने का इंतजार करने लगा। दरअसल मैं उससे बोलने के लिए वक्त दे रहा था। मुझे अब यकीन हो चला था कि इसके दिमाग में कोई ना कोई खौफ जरूर है। जो दोनों बहनें हमेशा एक साथ रहती हैं, एक दूसरे के बगैर कहीं भी आती जाती नहीं। मैं सुनना चाहता था, आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक दूसरे के बगैर नींद नहीं आती। वो कुछ देर खामोशी से बिस्तर की चादर पर नजरें गाड़े खामोश रही, फिर बोले। जब अम्मा हमें छोड़कर चले गईं, तब हम दोनों बहनों की उम्र इतनी ज्यादा न थी। माँ के बगैर जिंदगी बेबस हो जाती है। अम्मा हमसे बहुत प्यार करती थी, कहती थी खुदा ने भले बेटा नहीं दिया, मगर मेरी ये दोनों बच्चियां बेटों पर भारी हैं। अब्बा को अलबत्ता बेटे की कमी महसूस होती थी, क्योंकि वो खुद भी दादा दादी के अकेले वारिस थे। अम्मा ने हमारे बहुत नाज उठाए थे, लेकिन जब वो अल्लाह को प्यारी हो गई तो हमारी जिंदगी अंधेरा हो गई। न दिन का होश, न रात का पता। रो रो कर हमारा बुरा हाल था। मोहल्ले वालों और चंद रिश्तेदारों ने कुछ रोज तक आना जाना रखा, हमारी हिम्मत बढ़ाई, हमें हौसला दिया, आगे बढ़ने की तलकीन की, और फिर सब अपनी अपनी जिंदगी में खो गए। वो 2 मिनट के लिए खामोश हुई। मैं हुमैरा की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। यकीनन माँ के नाम से आंखें भीग जाती हैं। इसकी बातों ने मुझे भी आपदीदा कर दिया था। मुझे अपनी अम्मी याद आने लगी थी। मैंने अपने आंसुओं पर काबू पाया और उसका कंधा थपथपाया। वो फिर कहने लगी। अम्मा को याद करके हम रोते रहते थे, किसी काम में दिल ना लगता था। अब्बा का भी यही हाल था, बस एक दूसरे को तसल्ली देते रहते। घर के काम मैं करती थी। मेरी ये बहन बहुत डरपोक है। ये अम्मा के साथ बहुत अटैच थी, साथ साथ रहती थी। अम्मा की वफात के बाद ये डर कर रातों को उठकर बैठ जाती। अब्बा ने कहा तुमने हर वक्त इसके साथ रहना है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब्बा काम पर जाना शुरू हो गए। हम घर में अकेले होते थे। हमारे मोहल्ले में चोरी चिकारी की वारदातें बहुत होती थी। जिस घर में मर्द ना हो वहां पर तो सबकी आंखें लगी रहती थी। 1-2 बार हमें लगा कि सहन में कोई कूदा है। हमने कमरे की कुंडी लगाकर गली की तरफ खुलने वाली खिड़की से शोर मचा दिया। इस पर आसपास वाले आ गए तो जो कोई भी था भाग गया। हम बहुत घबरा गए। अब्बा भी काम से आ गए। इसके बाद हम बहुत मुहतात रहने लगे। ये कहकर हुमैरा कुछ और सिमट कर बैठ गई। डरो नहीं हुमैरा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या ये वजह है तुम दोनों के एक साथ रहने की? मैंने उसकी तरफ बगौर देखने के बाद पूछा। नहीं, उसने एक ठंडी आह भरते हुए कहा। नहीं, ये वजह तो इब्तिदा थी। तो फिर आराम से बताओ, फिर क्या हुआ? मैंने उसके सामने तकिए के साथ टेक लगाते हुए कहा। अब्बा को सब मशवरा देने लगे कि दूसरी शादी कर लो, बच्चियों के साथ कोई होना चाहिए, यूं अकेले रखना ठीक नहीं। जवान हो रही हैं, तुम काम पर जाओगे या बच्चियों की हिफाजत करोगे? कोई ऐसी औरत देखो जिसे बच्चे की ख्वाहिश ना हो, तुम्हारी बेटियों को अपनी बेटियां समझे। अब्बा नहीं मानते थे कि बच्चों पर सौतेली माँ नहीं लाऊंगा। हमारे लिए ये सोचना मुश्किल था कि अपनी माँ की जगह किसी और को दें। मगर जब एक बार बहन बीमार हुई, बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई और अब्बा को बार बार काम छोड़कर घर आना पड़ा, तब फिर सब मोहल्ले वालों ने अब्बा को शादी करने पर आमादा किया।
अब्बा ने हम दोनों से मशवरा लिया। हम चुप हो गईं। क्या कहते, हम भी अकेले रहने से डरने लगे थे। मगर अब्बा की परेशानियां और जिम्मेदारियां देखकर मैंने हामी भर ली कि आप दूसरी शादी कर लें। मोहल्ले की एक आंटी ने खातून का रिश्ता बताया जिसे औलाद न होने की वजह से तलाक हुई थी। शायद वो बांझ थी। अब्बा ने सोचा जिस औरत की औलाद नहीं हो सकती वो औलाद की कमी महसूस करती होगी, यकीनन वो मेरी बच्चियों से मोहब्बत करेगी। ये सोचकर अब्बा ने इस आंटी को कहा कि सादगी से निकाह करवा दें। हम बुझे दिल के साथ उस बात पर राजी हो गए। कुछ ही दिन बाद नहायत सादगी से अब्बा निकाह करके हमारे लिए नई अम्मा ले आए। नई अम्मा वैसे तो अच्छी थी, मगर जब गुस्सा आता तो उन्हें पता नहीं चलता था कि वो क्या बोल रही हैं। अगला पिछला तमाम गुस्सा एक ही वक्त में निकाल देती थी। हम दोनों बहनें बहुत डर जाती थीं। कभी अब्बा के देर से आने पर गुस्सा आ जाता, कभी अम्मा को वक्त न देने पर गुस्सा आ जाता, तो कभी हम दोनों पर बिला वजह गुस्सा आ जाता। इस वक्त वो कहती कि खुदा ने मुझे औलाद क्यों ना दी, मुझे क्यों इस नेमत से महरूम रखा, खुदा ने मुझ पर ही क्यों ये जुल्म किया, अब मैं किसी के बच्चे पालूं। पता नहीं क्या क्या बोलती थीं। हम तो डर के एक कमरे में बैठ जाते और दुआएं पढ़ते रहते थे। मोहल्ले की खातून ने बताया कि उन्हें कभी कभी नफ्सियाती दौरे पड़ते हैं, मगर घबराने की ज़रूरत नहीं, वैसे दिल की बहुत अच्छी है, खुश रहेगी तो जल्द ठीक हो जाएगी। हमें ये बात बाद में पता चली। अब्बा को भी हुआ कि पहले बताना चाहिए था। खैर, अब तो जो हो गया सो हो चुका था। हाँ, वो जब ठीक होती तो हमसे प्यार से बातें करती थी, हमारे साथ बातें भी करती थी। पहले कभी कभी ऐसा होता, फिर अक्सर उन्हें गुस्सा आने लगा। उनका गुस्सा इतना शदीद होता था कि हम दोनों सहम जाती। अब हर वक्त तो अब्बा घर नहीं होते थे, जो हमें छुपा लेते। बहुत डर लगता था हमें। हुमैरा सांस लेने के लिए कुछ देर खामोश हुई। तो क्या ये वजह है? मैं बड़े तहम्मुल से उसकी कहानी सुन रहा था और पूरा यकीन था कि यही वजह होगी, इन बहनों के खौफ की। मेरी तवक्को के खिलाफ उसने ये कहकर खामोशी तोड़ी कि नहीं, ये वजह नहीं है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो फिर उसने एक नज़र खिड़की के बाहर देखा और आहिस्ता से बोली, डर और खौफ इंसान के अंदर जमा होते रहें तो इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देता है। दरअसल नई अम्मा का एक भाई था, वो कभी कभी अम्मा से मिलने आता था। अम्मा को इसका आना अच्छा नहीं लगता था। असल वजह क्या थी ये तो नहीं मालूम, मगर उनके भाई की नज़र अच्छी न थी। वो जब भी आते बिला वजह मुझे आवाज़ें देते, कभी पानी मांगते, कभी चाय का कहते। वो मुझसे बात करने का मौका तलाश करते थे, जबकि नई अम्मा को ये बात पसंद न थी। उन्होंने मुझे कहा था कि जब मेरा भाई आया करे तुम कमरे से बाहर न आया करो। मैं नहीं चाहती थी, मगर वो किसी न किसी बहाने अंदर आते और नई अम्मा उनके पीछे पीछे चली आती थी। इनके भाई को बुरा भी लगता था, मगर अम्मा बेहतर समझती थी। पहले तो वो कभी कभी आते थे, फिर अक्सर आने लगे। कभी फ्रूट ले आते, कभी आइसक्रीम। हम दोनों बहनों को आइसक्रीम बहुत पसंद थी, मगर हम इन पर शो नहीं करवाते थे। अब्बा को अम्मा के भाई का घर आना जाना पसंद नहीं था। अम्मा को कई बार कहा कि उसे हमारे घर आने से मना कर दें, मगर अम्मा के भाई इनकी कब सुनते थे। अब वो अब्बा के सामने नहीं आते थे और अम्मा भी अब्बा की नाराज़गी के डर से उन्हें भाई के आने का नहीं बताती थी। हमें भी अम्मा ने मना कर दिया कि घर में लड़ाई होगी, अपने अब्बा को ना बताया करो, आखिर रिश्ते में तुम्हारा मामू लगता है। मैं खुद उससे मना करती हूँ, यहाँ ना आया करो, मगर क्या करूँ, भाई है मेरा, आ जाता है और देखो तुम्हारे लिए आइसक्रीम भी लाता है ना, इसलिए अब्बा को ना बताया करो। मैं जल्द उससे सख्ती से मना कर दूंगी। हमने अम्मा की बात मान ली और अब्बा से ये बात छुपाने लग गए। अब्बा बहुत मेहनत करते थे, हमारे लिए फ़िक्रमंद रहते। इन्हीं फ़िक्रों की बदौलत उनका बीपी हाई रहने लगा। हर दूसरे तीसरे दिन हाई बीपी से उनका बुरा हाल हो जाता। अम्मा और मैंने बहुत समझाया कि अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सोचे इख्तियार में तो नहीं होती ना। पता नहीं क्या बात अब्बा को अंदर ही अंदर खा रही थी। अब्बा कमज़ोर होते जा रहे थे। फिर एक रात अब्बा हमारे कमरे में आए, हमें बचपन की बहुत सारी बातें बताईं। हमारी अम्मा की बहुत बातें जमा थीं, उनकी तारीफ़ें, वो कितना ख्याल रखती थीं, हमसे कितना प्यार करती थीं। इस रात अब्बा ने दिल खोल कर हमसे बातें की, हंसी मजाक किया, कुछ बातें समझाईं, अच्छाई बुराई की तमीज़ बताई। हम बहुत खुश थे। अरसे बाद अब्बा हमारे साथ यूं वक्त गुजार रहे थे। काफ़ी रात तक हम बातें ही करते रहे। फिर अब्बा ने हम दोनों को गले लगाकर प्यार किया, दुआएं दी। पता नहीं अब्बा की आंखों में क्यों आंसू थे जो वो हमसे छुपा रहे थे। मैं तो बड़ी थी, समझ गई अब्बा किसी बात पर अंदर ही अंदर रो रहे हैं। मैंने अब्बा से कहा, आप हमारी फिक्र न किया करें, हमारे साथ हमारा खुदा है, वो सब अच्छा करेगा। अब्बा ने मुस्कुराकर सर पर हाथ रखा और सोने चले गए। ऐसे लगता था अब्बा बहुत थक चुके हैं। उनकी चाल भी बहुत धीमी थी। बस उस रात हम सोए और सुबह उठे। सिर्फ अब्बा सुबह न उठ सके, वो इनकी आखिरी रात थी। अम्मा ने हिला हिला कर उठाया, जब नहीं उठे तो हमें आवाज़ दी। हमारा तो परेशानी से बुरा हाल हो गया। मोहल्ले वालों को बुलाया, एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल ले गए।
वहां जाकर पता चला कि अब्बा को हार्ट अटैक आया था और घर में ही वफात पा चुके थे। हमारी तो दुनिया अंधेर हो गई। दुख और आंसुओं का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला था। सारी सारी रात उनकी वो आखिरी बातें याद करके रोते रहते। मगर अल्लाह के कामों में किसका दखल है। काफी दिन इसी गम में गुजर गए। बहन को दिलासा देना मेरा ही काम था। अब मैं ही उसका सब कुछ थी। वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी। अम्मा भी कभी कभी हमें दिलासा देती, मगर वो खुद भी टूट चुकी थी। एक बार तलाक और दूसरी बार बेवा उनके लिए भी बहुत गहरा जख्म था। अब बाहर के काम भी अम्मा को करने पड़ते थे। मैंने कई बार कहा कि मैं कोई काम तलाश कर लेती हूँ, पर अम्मा कहती मैंने कई लोगों को कहा है कोई काम ढूंढते, वो बताएंगे तो फिर कर लेना। इस तरह बस मारी मारी फिरती रहोगी। वो भी ठीक कहती थी। मुझे क्या पता बाहर की दुनिया कैसी है। ज्यादा वक्त घर में ही रहे। एक दिन अम्मा बिजली का बिल भरने गई। रश की वजह से उन्हें काफी देर हो गई। हम बड़े फिक्रमंद हुए, कहाँ रह गई हैं। उसी दिन इसी तरह बादल गरज रहे थे और बारिश बरसने वाली थी। इतने में बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने समझा अम्मा आ गई और फिर पूछे बगैर दरवाज़ा खोल दिया। सामने अम्मा का वही भाई था जिसे हम सब नापसंद करते थे। मैं परेशान हो गई। ये इस वक्त? मैंने कहा अम्मा घर नहीं। ये कहकर मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा तो उसने पाँव दरवाजे के आगे रख दिया और गंदी नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, ये तो अच्छी बात है कि वो घर पर नहीं है, हम आराम से बातें करेंगे। मैंने दरवाजे को फिर बंद करना चाहा। अब की बार उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अंदर आ गया। मैं चीखी, मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ दूंगा, ऐसी जल्दी क्या है। उसके होंठों पर मायने खेज मुस्कुराहट थी। उसने झटके से मुझे अपने करीब कर लिया। मेरी चीख सुनकर मेरी बहन बाहर आ गई और उसे मेरे साथ यूं जबरदस्ती करते देखकर चीखने लगी। अम्मा के भाई ने उसे चुप करवाने के लिए डराया धमकाया, मगर वो साथ वाले घर की दीवार से लगी चीखती रही। इतने में साथ वाली आंटी ने दीवार से पूछा, बेटा क्या हुआ। ऊपर से बाहर अम्मा भी आ गई। अम्मा को देखकर मेरी जान में जान आई। उनके भाई ने ये सब देखा तो तेजी से बाहर की तरफ भागा। बाहर जाते हुए नई अम्मा ने 2-4 जूते मार ही दिए। बहन का गला चीख चीख कर बैठ चुका था। हम दोनों एक दूसरे के साथ लगकर थर थर कांप रही थीं। अम्मा ने साथ वाली आंटी को कहा, नहीं कुछ नहीं, बच्ची डर गई है। मैं घर नहीं थी ना, इसलिए। अपने भाई को अम्मा फिर बचा गई। उन्होंने हमसे सारी बात पूछी और फिर डांटा कि पूछे बिना दरवाज़ा क्यों खोला और आइंदा से ऐसा करने से मना किया। हम दोनों बहनें इस वाक़े से इतनी खौफजदा हो गईं कि इसके बाद कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुई, ना दिन में ना रात में। साए की तरह एक दरवाजे के साथ रहती हैं। वो चुप हुई तो मैंने फौरन पूछा, और अम्मा का भाई फिर नहीं आया? नहीं, कुछ दिन बाद पता चला वो एक चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है। अम्मा को इसके पकड़े जाने का कोई दुख ना हुआ। अलबत्ता हमारे लिए ये अच्छी खबर थी, लेकिन बहन का डर मैं ख़त्म न कर सकी। हुमैरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैंने आगे बढ़कर हुमैरा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए प्यार से कहा, फिक्र न करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा और तुम दोनों का ये डर भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो। मैंने उसके हाथों को दबाते हुए कहा। उसने हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराई। मैंने भी उस मुस्कुराहट में उसका भरपूर साथ दिया। अब बादलों को भी सुकून आ चुका था। बाहर मौसम बदल चुका था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।